This conference will now be recorded. We discuss a new concept, basically a new constant, should I say new entity, should I say, that is and NBSP, that is means no break space, ठीक है, and NBSP, that is means no break space, यानी कि स्पेस को ब्रेक नहीं करना है. द मीनिंग ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नो ब्रेक स्पेस, यानी कि हमें स्पेस को ब्रेक नहीं करना है. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कि हमें स्पेस को ब्रेक नहीं करना है? व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस? लेट्स डिस्कस नाउ. ओके, just I'm removing this title tag here from here because you all understand the concept of title tag, and inside the body I remove the old code. ठीक है, तो ये हमें डिस्कस कर. चलिए आगे क्या है कि let's suppose I'm writing some content. I'm writing computer application and the code of this application is 165. okay, the code of this application is 165. now in above, no, we are learning HTML. ठीक है, I'm writing this, and actually I'm writing this in a single line only. ठीक है, now Ananya, able to listen me? Ananya, check your earphone, your mobile connection and all. I think there is no problem with other persons. Okay, check it once. Ananya, assist. Okay, now the thing is what? We are writing this in a single line, right? And one thing is here that I am giving some space. I am giving some space. So much space I have given. Then what happened? Let's see how many space I am giving. One tab space. I am giving tab space. One is the simple space bar. This is the space bar. One is the tab space. So I am giving here space bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 spaces I am giving between this to this, right? 10 spaces. If I run this code, then what happened? Let's see. I run this code. Okay, you can see guys, there is output is 165 computer application. We are learning HTML. What is the things to be observed here? The things to be observed that the space I provided between application and V. How much space I have provided? 10 space bar. 10 space bar. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 स्पेस बार? कि मैंने 10 बार स्पेस बार को ऐसे प्रेस किया था, प्रेस, और वो क्या हुआ, 10 स्पेस मैंने वहां पर दे दिए थे गिनकर. लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें
तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं ओनली ए सिंगल स्पेस इज देयर. हाउ मच स्पेस इज देयर? only a single space is there. Now the question is कि what is the reason behind this? What actually done by HTML, that we have provided, you can see very clearly, we provide 10 spaces. But when I run this code, only single space is there, not more than one, not 10, not 5, only single space is there. But in our HTML code we provide 10 spaces. Now one thing is here to be discussed, that content is the same. Whatever I'm writing, जो भी मैंने लिखा वहां पर 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन वी आर लर्निंग HTML, मैंने ये लाइन वहां पर लिखी, तो आप बच्चों देख पा रहे हैं कि ये लाइन एज इट इज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये हमारी लाइन परफेक्टली चल रही है. लेकिन रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम कि जो हमने 10 स्पेस वहां पर दिए थे, उन 10 स्पेसेस से ओनली सिंगल स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय द पाइथन. तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि जितने भी ये व्हाइट स्पेसेस हैं, चाहे वो न्यू लाइन हो, चाहे वो टैब स्पेस हो, चाहे वो नॉर्मल स्पेसेस हो, इन सबको HTML मल्टीपल स्पेस नहीं कंसीडर करता और उसको क्या कर देता है, एक सिंगल लाइन में, सिंगल स्पेस में सब कुछ कन्वर्ट कर देता है. तो अगर हमें मल्टीपल लाइन लेनी है तो हमने एक टैग डिस्कस किया था जिसका नाम था बच्चों BR, ब्रेक लाइन. सेम वे अगर हमें मल्टीपल स्पेसेस चाहिए एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट के बीच में, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं बच्चों NBSP से. किससे कर सकते हैं? NBSP से. ठीक है, तो नाउ वन थिंग इज हियर कि भाई ये है हमारा कोड और यहाँ पर जो हम मैनुअली स्पेस यहाँ पर दे रहे हैं वो हमारे नहीं कर रहे हैं काम. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से हमें स्पेस देना है और हमने लगा दिया यहाँ पे NBSP सेमीकोलन. ठीक है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर NBSP, और ऐसे मैंने मल्टीपल लगा दिए. ठीक है, मल्टीपल लगा दिए मैंने बहुत सारी लाइन्स. तो यू कैन सिंपली सी गाइस, if I run this code, then what happen? The happening is this कि पाइथन हमें बहुत सारी स्पेस वहां पर प्रोवाइड करेगा. पाइथन क्या करेगा? हमें वहां पर बहुत सारी स्पेस प्रोवाइड करेगा. लेट्स सी. आप देख पा रहे हैं कि मैंने इनके बीच में क्या क्या नया एट्रीब्यूट दिया, क्या नया नाम दिया? NBSP. N फॉर नो, B फॉर ब्रेक, N फॉर नो और S फॉर स्पेस, है ना, SP फॉर स्पेस. तो नो ब्रेक स्पेस NBSP. SP स्टैंड फॉर स्पेस, B फॉर ब्रेक, N फॉर नो. यानी कि जो स्पेस आपने दिया है उसको ब्रेक नहीं करेगा सिंगल स्पेस में. जितने स्पेस आप देना चाहते हैं, मल्टीपल स्पेस आप दे सकते हैं. बस आपको क्या यूज करना है? NBSP नाम का एंट्री ये आपको यूज करनी है अपने कोड में जहां पर भी आप स्पेस देना चाहते हैं. ठीक है, now the next thing is what? We have completed that NBSP concept. Okay, now the time to learn attributes. Time to learn about attributes. Okay, I have taken a blank file. So
Okay, next we have a topic attributes. Attributes, ठीक है. चलिए बच्चों, now told me what you mean by attributes. Attribute से आप क्या समझते हैं, ये डिस्कस करना है अभी हमें कि what you mean by attributes. Have you listened this word before or not? Tell me first. Have you listened this word before or not? Few are saying yes, few are saying no. Yes, yes. Okay, that's good, that's good, that's good. चलिए, अच्छी बात है. ये वर्ड आपने सुना है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये वर्ड आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स. ओके, गिव मी ए मोमेंट. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ऑल थिंग्स अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट इज द actually requirement of these attributes word inside our HTML concept. Okay, चलिए, just give me a moment. Okay, now the thing is कि एट्रीब्यूट क्या है. प्रॉपर्टी. सम से डिस्ट्रीब्यूट. केतन शर्मा, डिस्ट्रीब्यूट. ओके, चलिए. वेल बच्चों, एट्रीब्यूट का काम क्या होता है. अगर हम ह्यूमन की बात करें, है ना, ह्यूमन यानी कि हम लोग, तो हम सबके पास एट्रीब्यूट होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा एनहांस करता है ना. क्या करता है? एनहांस करता है. राइट. हर्ष शर्मा सेड इट इज क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, दैट्स गुड. तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि एट्रीब्यूट का काम क्या है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको एनहांस कर देता है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देता है. जैसे आप सब लोगों में से कुछ लोगों के पास या सभी के पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपके पास एकदम यूनिक है. जैसे कोई बोल सकता है कि सर मैं ना अनलिमिटेड बोल सकता हूं या बोल सकती हूं, मेरे को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कुछ भी बुलवा लो सर, हम बोल सकते हैं. कुछ लोगों का हो सकता है कि सर मैं स्कैटिंग बहुत अच्छी कर सकता हूं. कुछ लोगों का होता है कि सर मैं 24 घंटे टीवी देख सकता हूं या देख सकती हूं, है ना. कुछ का हो सकता है कि सर मैं कुछ भी मोबाइल बहुत देर तक गेम बहुत अच्छे खेल सकता हूं मोबाइल पर, मैं बहुत ही चैंपियन हूं गेम खेलने में. तो ये सब क्या है? ये सब बच्चों आपके एट्रीब्यूट्स हैं, है ना. कोई इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, कोई हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है. अब किसी का हो सकता है कि कंप्यूटर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी का नहीं है तो नॉट टू वरी, उसको अपन सही कर देंगे, है ना, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज कि एट्रीब्यूट क्या कर रहा है. एट्रीब्यूट हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है हमारी फंक्शनैलिटी को. ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके पास एकदम अलग है या दूसरों के साथ भी मैच करता है, ऐसी बात नहीं है. जैसे आप बहुत तेज भाग सकते हैं तो और भी लोग भाग सकते हैं, लेकिन आप भी भाग सकते हैं, ये आपके क्या है, एक एट्रीब्यूट है. ठीक है. सेम वे अभी तक जो हमने HTML को यूज किया, HTML के टैग्स को जो यूज किया, वो हमने किया विदाउट एट्रीब्यूट. अब उसके साथ एक और वर्ड ऐड होने वाला है जिसका नाम है एट्रीब्यूट, या फिर इस वर्ड को एट्रीब्यूट या फिर इस वर्ड को HTML में कहते हैं प्रॉपर्टीज. Properties, right? Also known as properties. Attribute also known as properties.
तो ये प्रॉपर्टीज का काम क्या है? ये प्रॉपर्टीज, अब मैं HTML पर आ जाता हूं, ये प्रॉपर्टीज हमारे HTML के टैग की फंक्शनैलिटी को एनहांस कर देती है। एनहांस बोले तो बढ़ा देती है, ठीक है, एक्सटेंड कर देती है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सटेंड, एनहांस? है नॉट क्लियरली understandable, right? Let's suppose we have a tag body, okay, and we close this tag. We close this tag, right? And I'm writing some content in it, like I'm writing hello. So if I run this code, let's suppose, like in mathematics, let's suppose you already used like doc type HTML head, everything you have written, HTML close, and everything you have written, and this is my code, right? In this code, what happening that if I run this code, तो एक वेब पेज हमारा ओपन होगा, एक वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। टाइटल हमने कोई दिया नहीं है, तो जिस नाम से फाइल सेव होगी वही यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा आएगा हेलो, ठीक है, ठीक है, ये काम हो रहा है। Now we have a new thing about the attribute or properties, why it is required. Now my requirement is, you can see whenever you run the code, let's I'm showing you, we have code, yes we have code. So if you see this code, this is only the output, 165 computer application, application, ये क्या हो गया, ये क्या लिख दिया मैंने, 13 कहां से आ गया इसमें, ओ ओके, ये डेट वाला आ रहा है यहाँ पे, मैं कह रहा डेट क्यों आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। हाँ, तो नाउ क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कंटेंट है ये मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि सर जो पेज है ना हमारा पेज, ये हमारा बैकग्राउंड इसका ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक का मतलब यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है। सर इज इट पॉसिबल दैट वी कैन चेंज द बैकग्राउंड like in different color, red, yellow, green, in any color I can change the background? Yes, possible or not? So I say yes, happily possible. You can change the background of your page, no problem at all, but by the simple HTML tags we cannot do this. If you are trying to do this by a simple HTML tag, so yes, this is not possible. So how can it is possible? So it can be possible by the help of attributes, because what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने बॉडी जो हमारा टैग है, जो उसकी नॉर्मल वर्किंग है किसी भी कंटेंट को वेब पेज पर शो कर देना, अब हम उस टैग की फंक्शनैलिटी को बढ़ा रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं कि भाई जो कंटेंट है वो तो आ ही आए, लेकिन उसके साथ का पेज का जो बैकग्राउंड है वो भी मेरा एक कलरफुल आना चाहिए, लाइक वो मेरा रेड आना चाहिए, येलो आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अलग कलर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर नहीं भी रखते हैं तब भी काम चलेगा, मैं उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूंगा। तो अब क्या है कि हमें अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है ये मैं हटा देता हूं बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइंग। हाँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं, हमारे पास एट्रीब्यूट का नाम है BG कलर, ओके, BG कलर एंड वैल्यू, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ ध्यान देने वाली क्या चीज है वो थोड़ा सा समझिए कि BG कलर एंड वैल्यू है ना, तो जो BG कलर है, ये जो BG कलर है ये तो है बच्चों एट्रीब्यूट, और वैल्यू ये है हमारी
एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है, कि ये तो हमारी वो वैल्यू है जो एट्रीब्यूट की होगी, और ठीक है। बच्चों मेरी बात सुनिए, आप ना एक चीज ध्यान रखिए कि आपकी जो क्वेरीज हैं, है ना, वो आप मेरे से लेक्चर खत्म होने के बाद पूछिए, क्योंकि जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा जो आपके दिमाग में छोटी मोटी क्वेरीज आ भी रही हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो भी नहीं रहेंगी। तो आप इन बिटवीन अगर मेरे को कोई हार्ड क्वेरी है, हार्ड का मतलब है कि जरूरी अगर कोई क्वेरी नहीं है, अभी इस समय कोई क्वेरी जरूरी नहीं है, तो उसे आप मत पूछिए। ओके, चलिए, तो नाउ बैक टू द टॉपिक कि बीजी कलर इज एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू है उसकी। तो बच्चों ये जो एट्रीब्यूट है ये हमेशा पेयर में आते हैं, जो हमारा ये जो एट्रीब्यूट है ना, वो किस में आता है, पेयर में। ठीक है, ये आता है हमारा पेयर में, एट्रीब्यूट जो है हमारा वो पेयर में आता है। किसके पेयर में, कि भाई एट्रीब्यूट का नाम होगा और एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, कि एट्रीब्यूट का नाम होगा और एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू को आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, वो आपको लिखना है डबल कोटेशन मार्क के अंदर। कोई भी वैल्यू है उसको आपको किसमें लिखना है, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, एंड आपका काम हो जाएगा। बीजी कलर इक्वल, इक्वल का साइन लगाना है, एंड आपको यूज करना है। तो अभी हम जो बीजी कलर यूज करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी एट्रीब्यूट उसके ओपन टैग के अंदर ही यूज हो सकता है, कोई भी एट्रीब्यूट उसके ओपन टैग के अंदर ही यूज हो सकता है, एंड टैग के अंदर हम कभी भी एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, the next is how can we apply this attribute? Okay, चलिए इसको करते हैं जल्दी से इम्प्लीमेंट, है ना, बड़ा आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। देखिए अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये सब, इसकी कोई नीड है नहीं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ देखिए मैं यहाँ पर, ओहो, हु इज राइटिंग ऑन माई, तो बच्चों यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बैक बीजी कलर एट्रीब्यूट बीजी कलर एट्रीब्यूट, ठीक है, बीजी कलर एट्रीब्यूट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बच्चों मैंने जैसा कि बताया कि बॉडी टैग के अंदर होगा, ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे बीजी कलर इक्वल टू, ठीक है, इनसाइड इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, कोई भी कलर का नेम जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने दे दिया बच्चों रेड, ठीक है, एंड यू कैन सी कि ये, अरे यार, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। ओके, अभी आप देखेंगे कि हमारी जो वेब पेज है वो हमारा हो जाएगा रेड कलर से, ठीक है, देख पा रहे हैं आप कि जैसे मैंने एट्रीब्यूट की वैल्यू का कलर रखा रेड, तो जो हमारा व्हाइट स्क्रीन था, जो हमारा डिफॉल्ट स्क्रीन था,
वो अब क्या हो चुका है, ओवरलैप हो चुका है, और हम अब इस स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, इस कलर को यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, now so have you seen how can we use this attribute, that attribute का नाम एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू इन सिंगल कोट्स। अब इसमें कुछ पॉइंट समझने वाले हैं। जैसे बच्चों यहां पर है एक स्पेस, सिंगल स्पेस है टैग नेम और एट्रीब्यूट के नेम में, ये मस्ट है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एक सिंगल एट्रीब्यूट, एक सिंगल स्पेस मस्ट है, उसके बाद आप 50 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सिंगल एट्रीब्यूट स्पेस देना बिटवीन द tag and attribute name, this is compulsory. So if I run this code, you can see the color change to green. Okay, or I am writing light green, ठीक है, light green. So you can simply see we can change the color of body, huh? But now one thing is here, there is just wait student. Okay, yes, now we have कि भाई हमें यहां पर एट्रीब्यूट और नेम ऑफ द एट्रीब्यूट में, टैग नेम और एट्रीब्यूट के नेम में हमें क्या करना है, हमें एक सिंगल स्पेस देना कंपलसरी है। ठीक है, आई एम यूजिंग लाइट ग्रीन और इसको मैं कर देता हूं बंद। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि ये हमने यूज किया बच्चों यहां पे कलर का नाम, व्हाट वी यूज, कलर नेम, कलर नेम। इस कलर नेम की जगह बच्चों आप यूज कर सकते हैं कलर कोड। ठीक है, कलर कोड। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के कोड हैं और उनमें से आप कोई भी एक कलर कोड यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर कोड यूज करने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा कि कलर कोड आपका काम कैसे करता है। ठीक है, कैसे कलर कोड आपका वर्किंग कर रहा है, उसके रेफरेंस में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। कलर कोड बेसिकली जो होता है वो 6 डिजिट से बना हुआ है। किसे, कितने डिजिट से, 6 कैरेक्टर का मैं कह सकता हूं, या 6 डिजिट का मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे भी एक रीजन है बोलने का। वो रीजन अभी आपको मैं समझाता हूं कि देखिए क्या हो रहा है कि देखिए जैसे ये है, तो कलर कोडिंग हमारी स्टार्ट होती है हैश से। हैश रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को। ठीक है, हैश लगाना जरूरी है। और यहां पे मैंने लिख दिया F 00000। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, हैश F 0000। कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो कलर कोड है वो 6 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, राइट, 6 डिजिट कह सकता हूं बेसिकली। और इससे पहले लगा हुआ ये हैश सिंबल। तो जो हैश सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को, इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर को। आपने देखा होगा बच्चों कि आप लोगों के पास जो विजिटिंग कार्ड होते हैं उनके पीछे देखना कभी भी जिसने भी विजिटिंग कार्ड जहां से भी वो प्रिंट होके आया होगा, उस विजिटिंग कार्ड का नंबर पीछे लिखा होता है। उस नंबर को आप देखना कि वो नंबर स्टार्ट होता है हैश से।
तो ये जो हैश है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को। किसी भी कैरेक्टर से पहले अगर हम हैश लगा दें तो मान लेते हैं कि ये एक नंबर फॉर्मेट है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब ये 6 डिजिट में डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों पहले की जो 2 डिजिट है, पहले की ये 2 डिजिट है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा बना देता हूं, है ना। अब ठीक है, मैंने क्या कहा, हैश हैश, ठीक है, हैश के बाद एफ एफ 0 0 फिर 0 0। ये वैसे तो पास पास होंगे, समझाने की वजह से मैंने थोड़ा दूर लिखा हुआ है। हैश रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर को, नंबर को। तो ये जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है ये होती हैं रेड कलर की, फिर ये नेक्स्ट 2 डिजिट होती है बच्चों ग्रीन कलर के लिए, और फिर ये नेक्स्ट 2 डिजिट होती हैं ब्लू कलर की, ठीक है, जी फॉर ग्रीन, ठीक है, बी फॉर ब्लू एंड आर फॉर रेड, ठीक है। बच्चों इन 3 कलर को मिला के ही आपके बिलियंस ऑफ कलर बनाए जाते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। इसको कहते हैं हम आरजीबी कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, आरजीबी। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखो, आरजीबी, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू, आरजीबी, ये एक सीक्वेंस होता है। अब इस सीक्वेंस में जो आरजीबी हमारे कलर हैं बच्चों, ये जो हमारा HTML कलर कोड है ये जो है ये आपका बना है हेक्साडेसिमल नंबर से। अगर आपको याद हो तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ये नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा बाइनरी, है ना, ऑक्टेल, ठीक है, और एक पढ़ा होगा आपने हेक्सा, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, ठीक है, और एक पढ़ा होगा आपने डेसिमल, ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने डेसिमल। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम है ये हेक्साडेसिमल नंबर से डिफाइंड है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर से, ठीक है। और डिटेल हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे इसकी, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है पहले ये समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर एक डाला है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला हैश FF0000। तो बच्चों ये FF देखिए, इस कलर के अंदर जो सबसे लो इंटेंसिटी है कलर की वो है 0, ठीक है, लो लो, या फिर नो कलर, लो लो। और एफ जो है वो है हमारी कलर की हाई इंटेंसिटी। कैसी है, हाई इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है ना। नाउ वन थिंग इज हेयर कि जो 0 है, 0 का मतलब नो कलर। जैसे अगर हम सपोज 1 करते हैं उस कलर की वैल्यू तो थोड़ा कलर आएगा, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर पे आता है पेंटर जो व्हाइट वॉश करता है आपके घर पे, जो पुताई करता है, वो पेंटर क्या करता है, जैसे कलर आपको बनवाना है तो थोड़ा कलर डालेगा, फिर आप पूछोगे अरे भाई अभी नहीं आया कलर, थोड़ा और डालो। तो आप क्या करते हो, उस कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, उस कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, ठीक है। और आपका जैसे चीनी है, चीनी को पानी में मिलाते हो, दूध में मिलाते हो। अभी आजकल आप मैंगो शेक और ये बहुत सारे अलग अलग तरह के बनाना शेक पी रहे होगे, उसमें क्या आपने देखा है कि चीनी डाली है ना, लेकिन कम रहेगी, तो फिर आप क्या करते हो, चीनी की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हो, थोड़ी और डाली थोड़ा और मीठा होगा, थोड़ी और डाली थोड़ा और मीठा हो जाएगा। ऐसे ही जो 0 है, तो 0 किसी भी कलर की लोअर इंटेंसिटी है और F उस कलर की हाई इंटेंसिटी है, ठीक है। तो पहले हम कलर का कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं, बाद में इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर ग्रीन कलर की इंटेंसिटी 0 है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी 0 है, किस कलर की इंटेंसिटी है, केवल रेड कलर की। तो एनीवन कैन एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमारे बैकग्राउंड पर, बॉडी के बैकग्राउंड पर कैसा कलर आने वाला है। एनीवन, रेड,
That's good. That's good. You all are absolutely right, guys. Very good. क्योंकि हमने केवल रेड कलर की इंटेंसिटी को यूज किया है, तो हमारे पेज पर आने वाला है कौन सा? रेड कलर. अरे समथिंग इज मिस्टेकन. What's the problem? I have not saved this file. Yes, I have saved now. Yes, ठीक है, फाइल सेव करना रह गई थी. तो रेड कलर हमारा बच्चों आ चुका है. ठीक है. नाउ वन थिंग इज हियर, आई एम यूजिंग हाई इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑल्सो. रेड और ब्लू कलर को अगर एकदम फुल अगर बराबर मिलाया जाए, रेड और ब्लू कलर को बच्चों अगर बराबर मिला जाए तो कौन सा कलर बनता है ये देख लेते हैं. ठीक है, पर्पल बन जाता है. देखो मैं आपको इस तरीके से ना, वॉयलेट, यस ठीक है, वॉयलेट, वॉयलेट कलर है ये. ओके ठीक है. तो मैं आपको इसके साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन भी पढ़ा रहा हूं. है मजे आ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं. देखो नेक्स्ट क्या है हमारा कि इसको बंद कर देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं. और अब आ जाते हैं हमारे पेज पर. और अगर बच्चों मैं तीनों कलर की इंटेंसिटी 0 कर दूं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अब कौन सा कलर आने वाला है. अगर मैं तीनों कलर की इंटेंसिटी को कर देता हूं 0, तो क्या आउटपुट आने वाला है? ओके, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, गुड गुड, व्हाइट व्हाइट, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया. someone is saying, Manvi Jain saying black, that's good. That's good. Okay, now one thing is, चलिए तो बच्चों कुछ लोगों का कहना है व्हाइट 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 व्हाइट, ऑलमोस्ट सभी का. यस तोमर का है ब्लैक एंड व्हाइट. ओके, तनिषा का भी व्हाइट ब्लैक है. चलिए तो बच्चों जिन लोगों का आउटपुट ब्लैक है वो एग्जैक्टली सही आउटपुट है. और देखते हैं हमारे वेब पेज का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक. अच्छा, एनीवन कैन डिफाइन द कलर ऑफ ब्लैक, कि ब्लैक कलर क्या है? एनीवन कैन डिफाइन? एनीवन कैन डिफाइन कि ब्लैक कलर क्या है? हाँ, mixture of several colors. That's good. That's good. Combination of all colors. That's good. That's good. Oh, oh, wow. That's a wonderful answer by the Manvi Jain. That absence of all colors. That's absolutely right answer. कि black color क्या है? Black color का मतलब होता है बच्चों absence of any color. देखो ये आपके सामने एग्जांपल भी है. क्या किसी भी कलर की इंटेंसिटी को हमने बढ़ा रखा है? नहीं, हमने किसी भी कलर को यूज ही नहीं किया. और जब हम किसी कलर को यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर कौन सा कलर दे रहा है? ब्लैक कलर दे रहा है ना. सो what happening here, that the same way we have a dark, अंधेरा. अंधेरा क्या है? अंधेरा है बच्चों एब्सेंस ऑफ लाइट. अंधेरा कुछ होता नहीं है, अंधेरा इज नथिंग. बट अंधेरा तब होता है जब लाइट नहीं होती. तो अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, प्रकाश, लाइट अपने आप में एक मैटर करती है, लेकिन अंधेरा सिर्फ तब होता है जब प्रकाश नहीं होता, जब लाइट नहीं होती. सेम वे ब्लैक कलर होता नहीं है जब अब एब्सेंस ऑफ एनी कलर होती है, जब हमें कोई भी कलर नहीं दिखता, उस समय कौन सा कलर होता है? उस समय होता है बच्चों ब्लैक कलर. राइट. लेट्स सपोज ए वन मोर एग्जांपल and we complete this session today. Now we have high intensity of every color. ठीक है, high intensity of every color. हाँ, anyone? High intensity of every color. Black, again black. हाँ, चलिए अभी मानवी, आद्या, तनिषा व्हाइट, शिखर व्हाइट,
ओके यस। अगर हम सारे कलर्स को यानी कि स्पेशली आरजीबी कलर्स को इक्वल इंटेंसिटी के साथ मिक्सअप कर दें तो वहां पर कलर निकल के आएगा बच्चों व्हाइट। कौन सा कलर निकल के आएगा? व्हाइट। अभी देखिए पुराना सेव है, मैंने अभी इसको चेंज नहीं किया है, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रीलोड दिस पेज, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा बैकग्राउंड क्या हो गया? व्हाइट हो गया। ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट ए कलर कोड सिस्टम। कि कलर कोड सिस्टम होता क्या है, दोबारा से एक बार समझ लें। ये 3 कलर पे बेस्ड है, आरजीबी। हर एक कलर के लिए दो डिजिट डिसाइड की गई हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू 00 होती है और मैक्सिमम वैल्यू FF होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो आरजीबी सीक्वेंस में होता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। और ये एक नंबर सिस्टम है जिसके थ्रू इस कलर कोड को बनाया गया है बाय द वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स, और शुड आई से जिन्होंने HTML लैंग्वेज को बनाया। तो उन्होंने इस कलर कोड को जनरेट किया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। किस नंबर सिस्टम के अंदर जनरेट किया है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। और इस नंबर सिस्टम के अंदर हम इस कलर कोडिंग को समझते हैं। ठीक है। लेटर यानी कि कल हम इस टॉपिक पर और डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग पर, एंड कैसे उनको याद रखना है, कैसे इनको बनाना है, ये हम कल डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ from my side today's session is completed. If anyone have query, let's discuss tomorrow. Okay, I will upload this video on the group. Let's see once let's watch once this video, and if any query, ask me tomorrow. Okay, bye bye. This conference will now be recorded.